शांति। गुड मॉर्निंग। ठीक है सभी? ठीक है। बाहर की बारिश हमें याद दिलाती है कि ट्रेनिंग इज ऑल्सो लाइक रेनिंग, इजंट इट? दादियाँ हमेशा कहती है एक हाथ में क्लास और एक हाथ में ग्लास। ये हम ब्राह्मणों का जीवन होता है, टाइम पास होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। So today the topic which I am going to take, that is turn stress into success. ये टॉपिक क्यों लिया है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को स्ट्रेस के बारे में बहुत सी चीजें बताते हैं, लेकिन वो बाहरी होती हैं. So sometimes people say that we know these things, what different you are telling. But if we take them to the inside story, then they appreciate it. This is something which they have told, we didn't know it. So try to focus on that, okay? And today's governance program, so I have to finish by 9:30, 9:40. So accordingly, I may be fast because all of you are experienced. So try to grasp faster, okay? So for that, we all have to be focused. So since we have to give these trainings to the corporates or to the government sector, so you are learning so many activities. One more activity which has come in my mind, I would like to add that we can take them to the little activity. उससे क्या होता है कि वो लोग थोड़े से active हो जाते हैं, which has been told to you. So the one activity which you can share is a brain activity, but we are going to do it with both hands, like this. All of you do it like this. And feel the sensations where it goes. Where it goes? Something happening in the brain? Something happening in the brain. So if we do it 100 times a day, it will activate your memory. जैसे कोई चीज पड़ी रहती है ना, तो वो चीज क्या हो जाती है? डेड हो जाती है. So if we do this activity, even for us, even for them, because they don't read a lot sometimes, so when we teach these things to them under training, they learn a lot. So it's a small exercise. Daily do it in the morning or any time, even to them we can tell them. Now when we talk to them about stress, they normally ask us, we can ask a question and we can tell, is it possible to be stress-free? Because we always talk about stress-free living. What do we say? What is your opinion? It is possible to be stress-free. All of you with the same opinion? But it happens, when we talk to the people outside where we are giving the training, at that time when we ask, they have different answers. Because they have too much under stress. When they are too much under stress, it comes in their mind. No. Stress को ना control करना बड़ा मुश्किल है. Can only be managed. We can't be stress free. This can be one answer from them, जो हम लोग उनसे उम्मीद कर सकते हैं. Second answer which they give sometimes, little stress is always necessary. We say not stress is necessary, but the pressure is necessary. Like हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है क्लास में जाना है, that is good. एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे की शादी करना चाहता है, that is pressure, but he feels very happy inside कि मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, isn't it? We are running for job, we are happy about it because I am going to earn from there. So स्ट्रेस जो है अगर प्रेशर की फॉर्म तक है तब तक तो ठीक है, पर कोई चीज बहुत ज्यादा खिंच जाती है तो उसका टूटने का डर रहता है. सो जो आजकल के लोग हैं उनकी क्या सिचुएशन है? They are under lot of stress. So we say we guarantee you that you can be stress free, but whatever we are going to teach you, you listen to it carefully and then finally you practice it. Then perfect practice will make you a perfect person. And also we can tell them about success. Success is journey, not the destination, isn't it? So if we change our perspective towards life, and also if we just turn within,
Like I'm facing you now, and if I turn 180 degree, then I will not be seeing what is outside, what is in front of me, but I'll be able to see what is there at the back. So if we just shift our consciousness, the way of thinking, then you can tell them with guarantee that you will be successful, you will be doing a lot, your work efficiency will increase to a great extent. This is what we promise you. जब हम किसी को ट्रेनिंग कराते हैं, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, they should be powerful. उससे क्या होता है, हम उनका अटेंशन अपनी ओर खींच लेते हैं. Okay? So this is a self-assessment of stress level. It's a thermometer kind of thing, because we all know that whenever we are under stress, so we just feel some emotions inside, isn't it? So most of the time the people have the feeling, they get frustrated, they feel uncomfortable, they become serious about things. Sometimes they are happy also, but the happy moments are very little. तो हम लोग उनको 2 मिनट के लिए साइलेंस में बिठा सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक देम विद इन. उससे क्या होता है, उनसे बाहर का फोकस हट जाता है. इट स्टार्ट्स थिंकिंग, isn't it? ट्रेन छूट जाएगा, अरे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब क्या करें, ड्राइवर तुम फास्ट चलो. क्या चल रहा है, थॉट्स. और अगर हम बहुत ज्यादा चलाते चले जाते हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो मेरे साथी भी क्या बोलने लगते हैं, यस इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, व्हाट टू डू नाउ, वी कैन नॉट रन विद द लगेज एंड ऑल दैट इट कम्स. तो अभी क्या हुआ, उनको हमें ये चीज सिखानी है और अंडरलाइन करानी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. सो एन इवेंट दैट अपसेट्स द स्मूथ फ्लो ऑफ थिंग्स डिस्टर्ब्स द माइंड, लीड्स टू टेंशन रिजल्टिंग इन स्ट्रेस. छोटी छोटी बातें डे टू डे लाइफ में आती हैं, हम उनको कह सकते हैं आज उठने में लेट हो गए, बच्चा भी पता लगा बीमार है, चांस की बात है बारिश भी हो रही है तो स्कूल बस भी नहीं आई, उधर से पता लगा गैस भी घर में खत्म हो गई, उधर से पता था रे आज तो घर में ऑफिस में मीटिंग है और वहां भी हम टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं. सो ऑल दिस थिंकिंग विल लीड टू व्हाट, टेंशन. एंड होल डे वी कीप ऑन थिंकिंग about one thing or the other. रास्ते में गए ट्रैफिक, घर से निकले नाश्ता नहीं किया, ऑफिस में पहुंचे तो बॉस ने कह दिया क्या बात है, ये नहीं चलेगा. So then we have to, while giving the examples, we have to see to which level we are talking. ये देखना पड़ेगा. मे बी आप भी बॉस हो, ये भी तो हो सकता है ना. Then it will hurt me inside कि मैं बॉस हूँ और मैं लेट जा रहा हूँ तो मेरे सबऑर्डिनेट्स को मैं कैसे कह सकता हूँ, isn't it? So this thing we have to take care. It's not that कि हम जो हमें बताया जा रहा है हमें वही बस एग्जाम्पल्स देने हैं. एक बार भोपाल कांड कहीं हुआ था तो एक बहन को दी, उसके बाद बहुत सारे कांड हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम्पल किसका चल रहा है, भोपाल कांड का ही चल रहा है ना. तो प्रेजेंट सिनेरियो को, सरकमस्टांस को, लेवल ऑफ पीपल जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो देख करके हमें बताना चाहिए. नाउ हाउ द स्ट्रेस इज डिफाइंड, व्हाट इज स्ट्रेस. अब जैसे हमने कहा सोचने से स्ट्रेस पैदा होता है, हम लोग साइंस में पढ़ते थे प्रेशर ओवर इन रेजिलियंस. अगर हम 4 मेटल शीट्स लेते हैं, ठीक है, चारों मेटल शीट्स के ऊपर हम लोग जो है सेम प्रेशर रखते हैं, लेकिन उनकी इनर स्ट्रेंथ फर्क है. सो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हर एक का जो स्ट्रेस फैक्टर निकलेगा वो अलग होगा. तो हम उनको रियलाइज कराएं. सिमिलरली विद ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग इतने सारे लोग हैं, ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट कैपेसिटी. किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है. किसी से जरा सा पूछ ही लिया जाता है कि आप लेट क्यों आए क्लास में, तो उसी में रोना शुरू कर देते हैं, मुंह बना लेते हैं, मूड ऑफ हो जाता है. और किसी को 4 बातें कह दी जाती हैं तो भी दे टेक इट वेरी लाइटली. इट्स ओके ना, सीनियर्स है ना, कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है. दे हैव देयर राइट, वी आर कमिटेड टू द ऑफिस, आई शुड बी ऑन टाइम. वी शुड से सॉरी, यस सर आई एग्री that I am late today. So then it will not be stress. Then it will be I stress free.
Isn't it? So we have to convert stress into success. It all depends on our thinking. Now we can talk to them and we can ask them what are the pressures जिससे आप कहते हो कि आपको स्ट्रेस हो जाता है. हम लोगों को भी कई बार हो जाता है, तो हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है. किसी को भाषण करने के लिए अचानक कह दिया जाए तो स्ट्रेस हो जाता है. किसी को कह दिया जाए कि भाई 10 लोगों का आ रहे हैं गेस्ट आपके पास, आपको भोजन बना के खिलाना है, बिकॉज दे हैव नेवर डन इट बिफोर, तो उसका स्ट्रेस हो जाएगा. तो इसी तरह से वेरियस फैक्टर्स, मीटिंग टाइमलाइंस, बॉस का नेगेटिव बिहेवियर है, ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, हेल्थ अनसर्टेनिटीज होती हैं, जॉब इनसिक्योरिटी है, जॉब डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जॉब भी तो आजकल बहुत डिमांडिंग है ना. तो वो लोग कहेंगे मुझे इस चीज का स्ट्रेस होता है, पर उनको फिर से वही रिमाइंडर दो कि इन सब चीजों का जो आपको स्ट्रेस होता है उसमें होता क्या है. उसमें यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन. व्हेन यू कैन बी नेगेटिव इन दैट सिचुएशन, व्हाई कांट यू बी positive in that situation? There is nothing impossible. You know, if you become positive, our inner strength increases. So similarly, the pressures at home, many pressures, है ना, relationships है, expectations है, lack of patience है, बोल दिया फिर आता है हमने फालतू बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था. Parenting है, that has become a challenging work now. Communication gap है, feeling of belongingness है, uncertainties है, death, divorce, separation and shifting. Many things are there. Now though the things got simplified, but even then you know pressure तो accumulate होता है, और वो प्रेशर कई बार डिफरेंट तरीकों से जब हमारे पास आता है तो हमारे सिर को क्या कर देता है, भारी बना देता है. तो मन इज वेरी लाइट, माइंड इज वेरी लाइट, पर हम कितने शेर का बन जाते हैं. मन को हिंदी में कहते हैं मण बना देते हैं, मीन्स वेरी हैवी बना देते हैं, और एक मन इज इक्वल टू 40 kg. सो द माइंड विच इज वेरी लाइट, इट बिकम्स वेरी हैवी, एंड देन द उसका इफेक्ट जो है व्हाट वी फील कि हम लोग स्ट्रेस्ड होने से हमारी इंट्यूशंस खत्म हो जाती है. कभी किया महसूस? हम लोग डिसीजंस नहीं ठीक ले पाते. कई लोगों के डिसीजंस बड़े क्लियर होते हैं. उसका जो रीजन होता है वो यही होता है कि वो लोग अंदर से बहुत लाइट होते हैं, तो जो चीज निकल के आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है. The temporary techniques which people learn outside to de-stress themselves, जैसे डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करो, है ना, वो क्या कहते हैं, शीर्षासन करो. हम क्या कहते हैं, वो बैलेंस ऑन हेड कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ हेड. समझ आए? ये बहुत जरूरी है. तो वो उनको कहो इट इज गुड. ये मत कहो कि नहीं इससे नहीं स्ट्रेस कम होगा, नहीं, उससे हमारी जो मसल्स हैं रिलैक्स हो जाती है, बट टू सम एक्सटेंट यू सी. और कई बार क्या होता है, थॉट प्रोसेस इतना एक्टिव होता है कि वी कैन नॉट इवन आफ्टर डीप ब्रीदिंग it doesn't give that result. And similarly mindfulness, they try to focus themselves on one thing. They want to focus but they can't focus because that thing is running in the subconscious. उनको ये चीज बड़ा क्लियर के बताओ कि जो शुरू में जब हम सोचना शुरू करते हैं और बार बार उस चीज को सोचते चले जाते हैं and we give the same thing to others, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर वो जो चीज पहले हम जान के सोच रहे होते हैं और फिर वो चीज हमारे जब सबकॉन्शियस में एंटर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली चलती रहती है और उससे हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा डिप्लीट होती है. फिर हम कहते हैं नहीं हम तो कुछ नहीं सोच रहे, बट वी डोंट कम टू नो क्योंकि वो सामान कहाँ घुस गया, वो वेस्ट कहाँ घुस गया, हमारे स्टोर में घुस गया. जो चीज स्टोर में चली जाती दिखती तो नहीं है ना. तो ये सब चीजें हैं, मूवमेंट्स है, वॉकिंग, इट इज अ गुड एक्सरसाइज. It's not that it will relax you and it will make you stress free. That is not the guarantee. Positivity is very important and self-care is very important. Now, ये जो है self-care, people are talking a lot about it and they say if you take care of yourself, you can achieve many things in life. And this is what Baba has taught us. कि सारे levels में कौन से level को ऊपर लेके आओ, self-care को.
सेल्फ केयर किया, हम सुबह उठे मेडिटेशन किया, एम्पावर किया, मुरली सुनी, पॉजिटिव थॉट्स ले लिए और फिर साइलेंस में रहे 8 बजे तक, बहुत कम सोचा। आफ्टर दैट वी स्टार्ट आवर एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा सेल्फ केयर से हमारा बेनिफिट होता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि कई लोग अपना बताते हैं कि मेरी वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ गई। केवी के राजू थे, साउथ इंडिया के बहुत बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और एक बार वो कट शॉर्ट करती हूँ, स्टोरी तो लंबी है, कि एक बार हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी बीकेएस ने कि इंडस्ट्री में योगा कितना जरूरी है। वो उसमें चीफ गेस्ट आए थे हैदराबाद में। तो क्या हुआ, बीच में लाइट चली गई। तो उनके यहाँ क्या होता है, लाइट चली जाए किसी प्रोग्राम में तो लोग जो विस्लिंग शुरू कर देते हैं। And here the conference which we organized, everybody was sitting silently, quietly, and they were receptive to whatever we were talking. तो क्या हुआ कि उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे ये क्या, एक तो ये हमारे बेनिफिट के लिए सोचते हैं और दूसरा यहाँ तो बड़ी शांति से सब लोग बैठे रहे। तो उसके बाद वो जब उनके मन में आया कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने अपने सीनियर्स को कहा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये सब जो है ना स्पिरिचुअल पावर की कमाल है। तो उन्होंने कहा मैं भी आपके इंस्टीट्यूशन चलना चाहता हूँ हेडक्वार्टर, एंड आई वांट टू सी। तो जब वो वहां पर आए तो वो इतना इम्प्रेस हुए, देन ही हैड बीन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स व्हिच वी हैड देयर। और उसके बाद दादी से उन्होंने पूछा कि आपके पास जो पावर है वो आप मुझे दीजिए। और वो अपने अनुभव में बताते हैं कि उन्होंने सवेरे उठना शुरू किया, रात के जो अपॉइंटमेंट्स थे उनको कट करना शुरू किया, अपने को एम्पावर करते थे हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर जो ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके बारे में सोचते थे। तो उनको पता होता था व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय ऑफिस टुडे, व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो उससे उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी बताते हैं बहुत ज्यादा बढ़ी। सो many have, like brother Sitaram Meena ji was sharing yesterday कि कैसे बाबा ने उनकी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाया और उन्होंने डिसीजंस जो थे ठीक लिए। सो इनर मैकेनिज्म टू बी सक्सेसफुल एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस। Now when change is happening, somebody is saying me something, I want to reach office on time, I started on time, but on the way I just found the traffic is there, I can't do anything. So the change has happened ना, जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो हम उनको बता सकते हैं कि change coming from outside, that is not in our control. बारिश हो रही है, कंट्रोल में है, हम सब समझदार हैं, तो what we have done, we are all carrying umbrella, isn't it? So we have to look for the solution. So the question mark is always stayed up, and the full stop is always a point. तो अगर कोई भी आता है प्रॉब्लम, उसको if we convert into solution, that we put a point, so then the things become very easy. So what is in my control? What is in my? अरे बारिश हो रही है, बारिश को अभी आना था, बारिश को दिखता नहीं है, पता नहीं कलयुग में तो ये सब चीजें अचानक हो जाती। Why are you wasting your energy? Think of the solution. Yes, it's raining. हमें जाना है तो कुछ हम लेके जाएं, गाड़ी में जाएं, नहीं जाएं, पोस्टपोन करें। Solutions are there, many solutions are there. So we have to look for the solution. ठीक है? तो ये हम उनको बताएं। So first thing you create in your response is thought, which is followed by thought से क्या पैदा होता है? फीलिंग पैदा होती, फीलिंग होती है ना, और उसके बाद क्या होता है, मेरे अंदर में आई, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो मेरे अंदर में क्या पैदा हो जाएगा, मेरे अंदर में क्या पैदा हो जाएगा, जो फीलिंग पैदा होगी उसी के बेस पर मेरे वर्ड्स होंगे। रियली वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, है ना। और किसी को देख के मुझे नहीं अच्छा लगा, अंदर में अच्छी फीलिंग पैदा नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, अच्छा लगा, आप आए, है ना, फर्क पड़ गया ना, इंटेंसिटी में, एनर्जी फील्ड में बहुत फर्क पड़ गया, हमारे ऑरा में एकदम फर्क पड़ जाता है। तो अब हमारे जो शब्द हैं दे आर फॉलोड बाय आवर एक्शंस। एक्शंस हमारे बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से सब पता लग जाता है। कई बार किसी को देख के हम साइड कर जाते हैं और किसी को देख के हम लोग क्या कर लेते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो हम लोग उसको बुलाते भी उससे, अगर वो दूर भी है
तो भी आवाज लगा के वो खिसकेंगे नहीं और उससे बात करके ही जाएंगे. So now you just bring them to this point that who created your thoughts. You may be influenced by many things. You may give permission to be influenced, but who created your thoughts? भी कोई बात आई हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, you may or may not. पर हमारे थॉट्स किसने क्रिएट किए? Who created our thoughts? किसने क्रिएट किए? Thought is within me, no? तो मेरा मैं चाहूँ या नहीं, आप मुझे 10 बातें बोलते रहे और मैं एकदम शांत रहूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं डिस्टर्ब हूँ. डिस्टर्ब हम कब होते हैं? जब हम किसी बात के बारे में सोचना शुरू करते हैं. So who created your feeling? हमने क्रिएट किया. And who created your stress? Then you ask them. जब फीलिंग आपने क्रिएट की, you are the master of your emotions, isn't it? तो फिर हम उनको कह सकते हैं, then who created your stress? Who created your stress? You yourself created. आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उसको हल कौन करेगा? कौन करेगा? स्ट्रांगली पूछो, कौन करेगा? हम ही करेंगे ना. उनसे निकलवाओ, किसको कौन सॉल्व करेगा? यू आर द सॉल्यूशन. आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपने ये सारा जाल परिवार का बनाया. जैसे हम ही लोग आके कहते हैं कि अब हमसे संभलता नहीं, आप संभालो. क्यों संभाले? आप संभालो, रहो भी परिवार में. हम तो सेंटर रहना चाहते हैं. क्यों? आप रहो वहीं, आपका परिवार है, लेकिन इसको चलाने की कला को सीखो. सो दे से यस आई क्रिएटेड माय स्ट्रेस. उनको इस पॉइंट पे अच्छे से लेके आओ और फिर उनको हम बताएं कि हम देखो मोस्टली करते क्या, वी रिमेन ऑन कल्चर ऑफ ब्लेम. वी कीप ऑन ब्लेमिंग ईच अदर. इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया. इवन वी ब्राह्मण्स डू लाइक दिस समटाइम्स. Why don't we take the responsibility even if it is not my mistake? You tell, okay, my fault, I'll take care. Yes, you are right. उससे क्या होता है? दूसरा व्यक्ति कूल डाउन हो जाता है. एक बार ओआरसी में जानकी दादी जी आए हुए थे, हंसा बेनती साहब ने. तो आशा दीदी ने मुझे बोला, क्योंकि नया नया बना था उस समय, कि मिल कन्याएं थोड़ी छोटी है, तुम जाओ और दादी को जहाँ भोजन करना है ना, तुम आ जरा वो जाके जगह देखो. तो वहां पे उस समय कोई नहीं था और मैं दौड़ती दौड़ती, वो भी पीछे आ रही है और मैं थोड़ा भाग के वहां पे पहुंच गई. तो चांस की बात है, बहनें तो बहुत अच्छे से तैयार करके तो चली गई थी अपनी तरफ से, लेकिन पीछे से लाइट ऑन थी. तो वहां पे उन दिनों बारिश के दिन थे शायद, तो मच्छर बहुत आ गए पर वाले. तो एकदम हंसा बहन ने कहा, would we see what is this? I agree. Sorry. अब मैं उस समय ये थोड़ी कहती कि नहीं, मेरे को क्या पता, मैं तो यहाँ पे अभी आई हूँ, है ना. हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. अगर हमें कहीं थोड़ा झुकना पड़ जाता है और हमें किसी बात को लेना पड़ जाता है, तो इसमें कोई हमारी तौहीन थोड़ी है, तौहीन थोड़ी है इसमें हमारी. तो हमें उस चीज को, अपना दिल बड़ा करके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. जिसको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, if I point out one figure towards you, then how many are towards me? 3. And this signify, thumb signify that yes, you have 3 in you. तुम्हें अपने को देखना है. सेल्फ केयर माना अपने को देखना, अपने थॉट प्रोसेस को देखना. So what do you think is the most common object of blame? अब किस किस चीजों को ब्लेम करते हैं? तो ये दिखाने से पहले हम उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि तो गवर्नमेंट को करते हैं, बॉस को करते हैं, बैंक्स को करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को करते हैं, कल्चर को करते हैं. कल्चर है ही ऐसी, हम करें क्या? इंडस्ट्री, स्पाउस, समटाइम्स मेरी स्पाउस ने खाना बना के नहीं दिया, मैं क्या करता हूँ, इसलिए लेट हो गया. colleagues and she is more beautiful than me. So many things are there, you know, which disturb the mind of us. तो उनसे जब हम खुद निकलवाते हैं ना, the session becomes interactive and they start enjoying. Like a departmental store, like a departmental store, we find many. हम अपने साथ कैसे एसोसिएट करके रखते हैं, मेल, यू आर फीमेल, टीचर है, इंजीनियर है, हिंदू है, मुस्लिम है, प्रोफेशन है, पोजीशंस है, बहुत सारी स्किल है, नेशनैलिटी है, रिच है, पुअर है, अगली है, ब्यूटीफुल है, बहुत सी चीजें, ये सारी क्या है, टैग्स हैं जिनको हम अपने साथ लगा के रखते हैं. So in the departmental store you find the suits and dresses have many labels like
टाइप ऑफ क्लॉथ, प्राइस, वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, साइज एक्सेट्रा, है ना। तो क्या होता है कि जब हम ये टैग्स अपने साथ लगा करके रखते हैं, then it brings ego, attachment and anger with it. टैग लगा के रखा है ना हमने, वो बिग बॉस, I can say anything, I am the controller, I am the master. Without anger के तो काम चलता नहीं है. I can shout on them, I can put them away, I can issue memos to them. So you know many things. Now we can take them to the cycle कि क्या डिटेल इसका प्रोसेस होगा, अंदर में क्या होता है. इनर स्कैनिंग हमको बता सकते हैं कि अगर हम लोग थॉट्स क्रिएट करते हैं जो इरेशनल है, मतलब कोई उनका मीनिंग नहीं है, करे चले जा रहे हैं, इरेशनल, उस समय ये नहीं होने चाहिए. जैसे मेरे यहाँ पे बैठे हुए विचार कोई ऐसे नहीं चलने चाहिए, ठीक है ना. मेरा अटेंशन पूरा टॉप पे फोकस्ड होना चाहिए. नेगेटिव है, बेकार, इसके साथ क्या दोस्ती आदत पड़ी हुई है, ठीक है, इनको बोलने दो. एक्टिविटी पे मैं अपने अंदर में क्या जनरेट कर रही हूँ, क्या जनरेट कर रही हूँ. जैसे ही मैं अपने अंदर से लो फील कर रही हूँ तो मेरा खराब हो रहा है. तो कई लोग हमें देख के कह भी देते हैं, why are you looking sad, why are you looking sad, why are you looking sad, tense, isn't it? तो इससे फिर हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है. और एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं, can't stand my boss, so then फीलिंग कैसे क्रिएट होगी, एंगर या रिजेंटमेंट की. बड़ा मुश्किल ना है तो बहुत अच्छी बात है. हम लोग देखते थे ऑफिस में यही होता था, अरे वो आ गए, एक के आने में बड़ी खुशी होती थी, दूसरे के आने पे बड़ी रिजेंटमेंट होती थी. नहीं, feels like anger or resentment, acts like aggressive और uncooperative. नहीं कोऑपरेट करेंगे. हम लोग आरबीआई के साथ डील करते थे तो कई बॉस होते थे, उनके साथ काम करके इतना मजा आता था कि फटाफट क्लियरिंग लगा देते थे और क्लियरिंग हाउस आरबीआई पहुंचा देते थे. और एक होता था जहां हमारी क्लियरिंग आउट हो गई तो बॉस आता भी, भाई ठीक है काम पूरा कर लो, जल्दी कर लो, क्लियरिंग भेजनी है, क्योंकि पूरे हम बैंक की क्लियरिंग हमारे पास आती थी. तो वो कहते थे भूलता बोलने दो, हम भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अपने कैबिन में बैठे रहते थे. एक होता था जो आके सारे स्टाफ के साथ कोऑपरेटिव हो जाता था. कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं ना, बॉसिज्म की तरह बातें कहते रहेंगे, ये करो, भी तुम भी लग जाओ ना साथ में, दूसरे के अंदर एंथू आ जाएगा. Isn't it? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई थिंक आजकल जो हमारा नजरिया है ना चीजों के प्रति, बातों के प्रति, बहनों के प्रति, इवन जो लोग फैमिली में रहते हैं उनके प्रति, जिसको बाबा ने कल मुरली में बोला ना कि मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, है ना. ये क्या है, ये भी बॉसिज्म है. मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से चले, मेरे आगे नाश्ता आना चाहिए. अरे भाई उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, तुम बना दो, मदद कर दो, साथ में आज तुम बना के खिला दो. हाउ डज इट मैटर, डज इट मैटर? ठीक है, यू आर टू बिजी, दैट्स अ डिफरेंट इशू. इसी तरह से आजकल मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहन आते थे में वेरी गुड प्रोफाइल, सो वी शुड नॉट ट्रीट देम एज वीआईपी बट एज ए स्पेशल पर्सन. डेफिनेटली इजंट इट, वीआईपी करना चाहिए. कई बार क्या होता है उससे हम उनका पोटेंशियल नहीं यूज कर पाते, तो उससे क्या होता है जब हम उनको घर फील कराते हैं तो दे फील वेरी गुड, दे फील वेरी गुड. मुझे याद आता है, एक मिसाल देती हूँ मैं आपको. हमारे यहाँ एक चीफ सेक्रेटरी जौहरी जी आते थे, तो क्या हुआ कि उनका एक हेरिटेज हाउस था सोलन में, तो वो लोग जाते रहते थे वहाँ पर. तो एक बार वहाँ पे गए होंगे पूरी फैमिली को लेके, तो आश्रम पे आते थे तो अपने आप वो वहाँ गए थे. तो वो सोलन सेंटर पे गए होंगे जहाँ पे वो बहुत छोटा सा सेंटर था. तो बहनों ने बड़े प्यार से सेवा की उनकी, इसलिए नहीं कि ये लोग बड़े लोग हैं, लेकिन इसलिए कि ये लोग आए हैं. तो उन्होंने कहा कि आप पानी लीजिए, खाना खाए बिना नहीं जाइए. तो वो इतना उनको टचिंग लगा कि बहनों ने हमारी कैसे सेवा की घर की तरह से. तो उन्होंने अपना हेरिटेज हाउस, कहते सिस्टर्स डूइंग सच अ वंडरफुल सर्विस एंड दे आर लिविंग इन सच अ स्मॉल हाउस, तो उन्होंने पूरा हेरिटेज हाउस बाबा को दे दिया.
है ना। तो ये सब हमारी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चलते हैं। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मर्यादा की लकीर को हम नहीं क्रॉस करें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत किसी के लिए त्याग से कोई हमारी सेवा हो सकती है तो उसमें हमें पीछे भी नहीं हटना चाहिए। तो feels like anger or resentment, acts like aggressive or uncooperative and it results in, उसका फिर रिजल्ट कहाँ तक जाता है उनको हम ये बताएं कि आपके कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे क्लियरली और कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी, रिलेशनशिप्स आपके खराब हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज डिनाइड और मिस्ड। आप कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं करते, अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे। कहीं से बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन से आया होगा, हम अंडर स्ट्रेस है तो हम उनको मना कर देंगे कि अभी नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, होगा मूड ऑफ किसी कारण से टेंशन में, लेकिन फिर हम उस बात को दूसरे तरीके से ले जाते हैं। सो प्रमोशन पे भी उसका बहुत अच्छा असर आता है जयप्रकाश भाई, आता है ना, बहुत बहुत गहरा असर आता है ऑफिस के अंदर। तो कंक्लूजन इज इट गेट्स क्रिएटेड इन रेस्पॉन्स टू सिचुएशंस and other people's behavior. It is a chain of negative thoughts that triggers negative emotions like frustration, restlessness or sadness. So, we are the creator of our feelings. ये उनको पक्का कराओ कि thought किसने create किया, बुलवाओ उनसे, किसने thought create किया, हमने किया, वो बोले इस चीज को, इसका मतलब स्ट्रेस किसने क्रिएट की, हमने स्ट्रेस की, हमने की भी बजाय उनसे कराओ मैंने अपनी स्ट्रेस को क्रिएट किया, कलेक्टिवली नहीं किया, मैंने उस चीज को क्रिएट किया, तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन भी किसके पास है, मेरे पास है। तो अब क्रिएटर फीलिंग्स के कौन है, वो कहेंगे कि आप हैं। एज स्ट्रेसफुल फीलिंग्स अराइज इनसाइड ट्राई टू सेपरेट, अब करें क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ट्राई टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर फीलिंग्स। ओके, I am not happy today. क्या बात है, क्यों खुश नहीं हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या, कि हाँ उसने वो बात कह दी जो मेरे दिल को लग गई, उसे कहनी नहीं चाहिए थी। डायलॉग करो अंदर, मन क्या हो गया, कहा ही है ना, कहाँ लगी वो, कहीं लगी है, कहीं लगी है, लगी तो नहीं है, ठीक है, उसका मुंह था, उसने कह दिया तो क्या हो गया। So be a detached observer. Start dialoguing. जैसे हम गाड़ी को रिवर्स गियर में ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो सीज माना कम होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी। और फिर उस समय हम लोग क्या करें, एक पावरफुल थॉट रख दें, अरे क्या हो गया, ईच सोल इज यूनिक, शी हैज प्लेड और ही हैज प्लेड हिज रोल, उसके रोल को देख के मैं क्यों अपना रोल खराब कर दूं। अपने से बातें करो, इसको बाबा कहते हैं अपने से बातें करना। तो उससे क्या होता है कि वो फिर हमारी स्ट्रेसफुल जो फीलिंग्स होती हैं वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। सो बाय सेपरेटिंग योरसेल्फ दोज फीलिंग्स और इमोशंस विल cease to absorb your energy. Instead the feelings will begin to wilt and die. जो पुरानी फीलिंग्स है वो खत्म होने शुरू हो जाएगी। फिर उनको हम बता सकते हैं कि यहीं तक ये लिमिट नहीं होता, ये स्ट्रेसफुल थिंकिंग के क्या क्या शरीर पर भी असर होते हैं। तो उसमें आप देखिए कि अगर आप फियर में हैं तो उनसे निकलवाइए। फियर में क्या होता है, हार्ट अटैक, हो ये क्या हो गया, तो हमारी हार्ट बीटिंग क्या होती है, तेज हो जाती है, तो हम उनको कहते हैं हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और इसी तरह से अगर हम एंगर में होते हैं तो कैंसर, वूंड होने के डर रहते हैं। टेंशन में होते हैं तो बहुतों को स्किन रैशेस हो जाते हैं। वरी में है तो क्या होता है, अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम उनको बताएं कि ये कोई कम चीज नहीं है, जो आपको स्ट्रेस कम करने से आपको लाइफ में फायदा हो सकता है। फैमिली बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग होने लगती है, रिलेशंस हमारे अच्छे होने लगते हैं। एक बार आप इसको करके तो देखो ना, फिर हमें बताना कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होने से आपको व्हाट बेनिफिट यू हैव रिसीव्ड। वर्क ऑन पुटिंग अ पॉजिटिव साइकिल इन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक अच्छा थॉट क्रिएट करते हैं कि माई रोल इज टू गिव कोऑपरेशन, उसने मेरे को नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं उसको दे दूं, है ना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो उससे क्या होता है कि दूसरे के अंदर में भी, हमारे अंदर में भी एक अच्छी फीलिंग जनरेट होती है
काम, फोकस्ड, एंथुजियाज्म हम फील करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, कल का इंसिडेंट, शायद हो सकता है हमारे वो भाई मधुबन वाले, पांडव भवन वाले, क्या नाम था उनका, नहीं बैठे इधर। कल हम लोग चाय पी रहे थे 3-4 लोग डाइनिंग रूम में। तो हमने बोला एक बहन को जो हमारे साथ है कि 3 कप चाय ले आना। अब वो भाई भी एक जो पांडव भवन से आए हुए थे, चौथे आके बैठ गए। तो अब अपनी चाय मैंने उनको ऑफर कर दी, तो वो कहते हैं कि नहीं आप लीजिए, आ जाएगी मेरी, मैंने बोल दिया। नहीं, बट आई फेल्ट कि ही इज फ्रॉम पांडव भवन, ही इज अ सीनियर ब्रदर, सो ही शुड गेट इट फर्स्ट। तो मेरे अंदर में क्या हुआ, मुझे क्या मिला, कुछ मिला होगा, सुकून मिला, खुशी मिली कि मैंने बैठे बैठे में पुण्य का काम कर लिया, और शायद उसने भी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा। तो ये ह्यूमैनिटी कहो इसको या कुछ भी हम कहें, कि थोड़ा सा उस लेवल पे जब हम कनेक्ट होने लगते हैं, या एज ए सिस्टर भी कहो कि मेरी ड्यूटी बनती है, वो मेरा भाई है तो मैं उसको कोई चीज ऑफर करूं, नहीं बनती है ना। तो कहीं ना कहीं हम किसी बात को किस तरह से लेकर के हम लोग अपने को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, एंड वी कैन सेटिस्फाई others also. Acts like cooperative, seeking further information and checking progress with others. So results in what? Results in what? बाबा के काम जल्दी कैसे हो जाते हैं? We are all in harmony. जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को आना था ORC में, सारी टीम उनकी, पता नहीं 2000 पुलिस वाले थे, फर्स्ट टाइम था ना, तो और हरियाणा की हिस्ट्री में वो पहली बार आए थे। इतने सारे पुलिस वाले सब कहें जी आपका हॉल तो बना नहीं है और इसमें तो नहीं आ सकते अब्दुल कलाम जी। हमने कहा वो आके रहेंगे। सारे भाई बहन जुट गए, किसी ने कुछ नहीं देखा हम क्या है क्या नहीं है, A to Z करके मॉर्निंग में वो लोग हैरान हो गए। योगा प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं आयुष मिनिस्ट्री के साथ। अब वो लोग इतना कहते तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम कहते तुम जुड़ो हमारे साथ, आपका प्रोटोकॉल हम फॉलो करें, हम नहीं करेंगे, आपको करना है तो कर लो। इस स्टेज पे आ गए, है ना। तो इसलिए सब चीजों के अंदर हमारा जो टर्नओवर इतना ज्यादा है, वर्किंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, टास्क डन एफिशिएंटली, गोल्स कैन बी अचीव्ड, कॉन्फिडेंस इज बिल्ड इन सेल्फ एंड अदर्स, अपॉर्चुनिटीज भी क्या होंगी, खुल जाती हैं। जो अच्छा होता है तो हमारे यहाँ भी क्या करते हैं बहनें, ये बहन है, ये भाई है, इसको पकड़ो, बोलते हैं ना। इसी तरह से ऑफिस में क्या होता है कि हम लोग अगर हम्बल भी हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, और तो अपनी बात को भी हम बहुत अच्छे से मना सकते हैं। सो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ बट सॉल्विंग देम इज आर्ट ऑफ लाइफ। किसी काम को हम कैसे करते हैं, हम अपना कमरा फैला के भी रख सकते हैं, साथ ही साथ हम चीजें अपनी समेट के भी रख सकते हैं, दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ। उससे आपको रिलैक्स्ड फील होगा। जब आपका घमसान होगा तो आपको कैसे लगेगा, कोई चीज इधर है कोई चीज उधर है, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीजें हमको हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं। इसीलिए बाबा ने हमें कहा ये 8 पावर्स जो हमारे में राजयोगा से आती हैं, उसमें एक समेटने की शक्ति बहुत बड़ी है। यहाँ भी समेटना है और बाहर भी समेटना है। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमें अच्छा रूम मिलना चाहिए, हम कहीं जाते हैं, हमारी सुनवाई अच्छे से होनी चाहिए। एक बार मैं एक अफ्रीका के टूर पे थी, नैरोबी में। हम लोग वहां से कहीं बाहर गए, तो वेदांती बहन जी लेके गए थे, तो होटल में रहना था। तो सब कहने लगे हमारा रूम अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, दे दिया बढ़िया रूम। और उसके बाद जब रूम से निकले तो कहीं टिश्यू पेपर पड़ा है, कहीं चादर जा रही है, कहीं तकिया पड़ा है। निकल आए रूम से बाहर, मैं गई रूम के अंदर, सबके झांक के आई, जीप से उतारा सबको, जाओ पहले इनको ठीक करके आओ। व्हाट इज दिस? आपका घर है, होटल भी जितना समय हम उसमें रहे, अब हम उसको छोड़ रहे हैं, वो क्या है, हमारा घर था। घर की तरह मेंटेन करो ना उसको। रेलवे ऐसी है वैसी है, अरे उसको अच्छा बना लो।
पहले आप देखो सेकंड स्लीपर ही क्लास होती थी, हम उसमें ट्रेवल करते थे। तो स्लीपर क्लास में मैं हमेशा एक अखबार का या एक कपड़ा लेके चलती हूँ रद्दी अपने साथ। तो क्या किया, अखबार को नीचे डाला, पानी डाला, पोछा लगा दिया, तो क्या हो गया? हो गया कि नहीं साहब? सबके जूते मैं खुद अभी भी लगाती हूँ नीचे सीट के ठीक। एक चप्पल इधर जा रही है, एक चप्पल उधर जा रही है, अटैची देखो टेढ़ी पड़ी है, तो क्या होगा? माइंड भी तो टेढ़ा होगा ना। दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ, यू नो, हाउ वी लिव। ये व्यवहारिक बातें हैं जो हमारे जीवन से स्ट्रेस को बहुत कम कर देती है। कईयों का देखो घर हमेशा सिमटा हुआ दिखाई पड़ता, कईयों का जब देखो झाड़ू पोछा भी हो गया तो भी फैला पड़ा है, क्योंकि चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रखने की आदत ही नहीं है। तो जैसे यहाँ हमें ऑर्गेनाइज करना है, फिजिकली ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे हमको यहाँ भी ऑर्गेनाइज करना, ये हमारे में होना चाहिए। ये कॉमन सेंस से भी रिलेटेड है। और हमारे स्ट्रेस लेवल को, या समझो हमें पता ही नहीं है कि इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है, तो कम से कम दूसरा जिसको मालूम है उसके स्ट्रेस लेवल को तो हम कम कर रहे हैं ना, या नहीं? कोई क्या कहेगा, रे ये आके रह के गए, कौन थे ये, कौन थे ये? कई बार मैं जाती हूँ मधुबन में, देखती हूँ ऐसे सामान फैला पड़ा होता कमरों के अंदर, देख के हैरानी होती है। क्यों नहीं ठीक रख सकते? अलमारियां भी प्रोवाइडेड होती हैं, सब कुछ होता है, क्यों नहीं हम ठीक करके? तो यहाँ भी ऑर्गेनाइज और यहाँ भी ऑर्गेनाइज। इससे केवल हम अपना ही स्ट्रेस लेवल नहीं कम करते, लेकिन दूसरों का भी कम करते हैं। पहले जो दादियां और दीदियां होती थी ना, बड़ी बहनें सुनाती कई बार, मनमोहिनी दीदी क्या करती थी, जब कहीं भी किसी सेंटर पे जाती तो क्या हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली कोई गेस्ट आना होता तो क्या करते हैं, बाहर से समेटा और सारा अंदर डाल दिया। तो वो क्या करती थी, बड़ी होशियार थी मनमोहिनी दीदी। क्या थी, वे राजकुमारी थी, वो तो इतने ठाट में पली थी, आते ही पहले अलमारियां खोलती थी। एक बार मेला हुआ शक्ति नगर में, हंसी की बात सुनाती हूँ, मैं वहां गई हुई थी, तो चक्रधारी दीदी, रात का टाइम हो गया था, मैंने कहा दीदी क्या कर रही हो इस टाइम? कह रही अलमारी समेट लूं, थोड़ा सामान इधर उधर कर देता। दीदी आते ही अलमारियां खोलती है। देखो होता है वो ठीक है, लेकिन एक होता है कि सामान को रखने की नहीं आदत है ठीक तरीके से, और हम कहते हैं हम बिजी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक आदत की बात होती है, आदत की बात होती है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमें बाबा यज्ञ के अंदर सिखाते हैं। इसीलिए तो देखो यज्ञ की इतनी रॉयल्टी आज तक भी कायम है। मैं आपको एक मैसेज दे देती हूँ, अभी मुझे विधात्री बहन बता के गई कि थोड़ा उनका जो प्रोग्राम है गवर्नर का चेंज है, तो 10 बजे तक उन्होंने बोला हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है? तो डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, बी अवेयर ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एनर्जीज, बी अवेयर ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एनर्जीज। हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, ये खराब व्यक्ति है, इसको बड़ा अहंकार है, ये एनर्जी माना ह्यूमन बीइंग्स में जो भी हमें दिखाई दे रहा है, हम अवेयर हैं कि इसने मुझे जो बोला वो अच्छा नहीं बोला, इसने जो बोला मुझे ठीक नहीं किया, सब कुछ अवेयर होने के बाद भी एक्नॉलेज देम। कैसे एक्नॉलेज करेंगे? ओरिजिनली व्हाट दे आर, ये ब्यूटी है। इनेट हम लोग प्योर हैं। अब नए व्यक्ति को हम बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे? उनको हम बताएंगे आपको शांति अच्छी लगती है, इसका मतलब शांति आपका मौलिक गुण है। प्यार से कोई आपसे बात करता है, आपको अच्छा लगता है, वी से यस वी लाइक इट वेरी मच। व्हाई? इसका मतलब ये मेरा अपना मौलिक गुण है, मौलिक गुण है। तो हम उनको ये अच्छी तरह से जमा दें, क्योंकि बहुत डिटेल तो हम उनको नहीं बता सकते, लेकिन उस समय हम उनको ये बता दें कि यस एक्सटर्नल एनर्जीज दे मे ट्राई टू इन्फ्लुएंस माय माइंड, लेकिन मुझे उन सब चीजों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना है। दे मे ट्राई टू डिसएम्पावर मी, लेकिन मुझे नहीं होना है। हम तभी होते हैं जब हम गलत सोचना शुरू करते हैं।
द सीक्रेट इज डिटैचमेंट। अब कई लोग इस पे पूछ लेते हैं डिटैचमेंट का क्या, हम घर छोड़ के चले जाएं क्या, परिवार का हम ध्यान नहीं रखेंगे ना? तो उनको कहना नहीं, इट डज नॉट मीन दिस। डिटैच्ड बट इन्वॉल्व्ड, डिटैच्ड बट इन्वॉल्व्ड, इट इज वेरी it is the principle of Brahma Kumaris which Baba has taught us. न्यारे भी रहो, प्यारे भी रहो। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम देखो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं तो कपड़ों को समेट के करते हैं ना। हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, मानो केमिस्ट्री लैब है, तो वहाँ हम लोग कैसे काम करते हैं, भी कोई एप्रन वगैरह पहन लेते हैं ताकि कहीं कोई एसिड वगैरह मेरे ऊपर ना गिर जाए। हम कुकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, कुकिंग में हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कोई दाग ना लग जाए, है ना? तो इसी तरह से सीक्रेट इज डिटैचमेंट, बट डिटैच बट इन्वॉल्व्ड। परिवार को छोड़ना नहीं है, रादर व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड यू आर स्ट्रेस फ्री, सो एट दैट टाइम यू कैन लुक आफ्टर थिंग्स इन अ बेटर वे। दिस इज व्हाट वी हैव टू फीड देम, पूरा फीड अच्छी तरह से करना है और उनसे पूछते रहे डू यू एग्री विद मी और नॉट। आपको लगता है इससे कुछ आपको बेनिफिट होगा? उनसे बार बार पूछने के बाद दिस रिक्वायर्स यू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी इन योर माइंड वेयर नथिंग अफेक्ट्स यू एंड नो वन कैन शेक यू। कोई कितना भी कोशिश करे मेरी सेल्फ एस्टीम को फिर कोई नहीं ले पाएगा। हम अपनी सेल्फ एस्टीम को खुद ही नीचे गिराते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक नोट है 2000 का, ठीक है? अब मैं इसको खूब अच्छी तरह से क्रश कर दूं, पांव से कुचल दूं, एंड आई जस्ट पुट इट डाउन, टेक इट इन माई हैंड एंड जस्ट ओपन इट, व्हाट वुड बी द वैल्यू? सेम या बदल जाएगी? 2000 का नोट तो 2000 का ही रहेगा, ठीक है ना? तो अपनी वैल्यू को हम कम करना चाहते हैं या हम अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर हम उनको एक मेडिटेशन करा सकते हैं, SOS, स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। स्टेप बैक का मतलब क्या है कि आप एकदम जैसे बैठ जाओ, आपको जैसे ही कोई थॉट्स इधर उधर के आने शुरू होते हैं आप बैठ जाओ, चेक योरसेल्फ, व्हाट इज रनिंग इन माय माइंड, इज इट अ गुड थॉट which I should take forward or I should not take it forward. हमने ऑब्जर्व कर लिया, no I should not take it forward, put a break, not allowed, be strict with yourself, and then steer means कि हम right thought which I want to create. This is not the time to sleep. Sleep, you go away, please. Not allowed. I have to listen things actively. तो mind क्या होता है? Mind is like a baby. बच्चा डर जाता है ना, तो मन भी क्या कहेगा? Yes, no. So you can take them to the meditative activity which we can do now. Let us sit in silence. We can tell them to close their eyes, or with their open eyes also they can do if they want. But normally, initially when we are moving with people for the first time or second time, they don't know we can practice meditation with open eyes also. So you can tell them there is no harm if they close the eyes at that time because it's first time for them. Allow your body and soul relaxed by sitting quietly and silently.
We will observe by giving directions. The body movements and the frequency of thoughts. Which is very high, slows down. Now, divert your attention from your physique and the external energies. And instruct your mind that this is your time for your personal progress. So be with me. Now, focus your all attention in the middle of Prakriti. The space between the two eyebrows. Now, see your mind as a big screen. Like a projector screen. Thoughts are coming and going. You are sitting as a detached observer. And observing the thoughts. Like a traffic police wala. He stands roadside to watch the traffic going on the road. Like in case of traffic police wala, to see people slow down their vehicles. Now in our case, to see you standing and watching as an observer, the frequency of thoughts will slow down. Even if now a thought is coming, don't bother and write a beautiful thought.
I am the master of my thoughts. Thought is my creation. My thought should be in the positive direction. जैसे भाई लोग होते हैं तो अपना टाई में भी जा सकते हैं, अच्छा लगता है वो उनको, क्योंकि पहले लोग हमारे साथ किस चीज से कनेक्ट होते हैं, फिजिकल पर्सनालिटी से कनेक्ट होते हैं। एक बार मुझे किसी ने बताया कि एक बहन किसी कॉर्पोरेट में गई, कहते टॉक तो बड़ी अच्छी थी लेकिन उसने ना ड्रेसअप ठीक से नहीं किया हुआ था। उनका क्या नहीं किया हुआ था, कहते जो वाइट कोट मिलते हैं ना हमारे, जो हम लोग नॉर्मली पहनते हैं, तो कहते वही पहन के वहां चली गई, शॉल को ऐसे लपेट के चली, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मैनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो थोड़ा सा हमें, इसलिए हमने कई बार जानकी दादी जी से ये सुना, वो हमेशा कहती थी, मैं जर्मनी में थी तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दादी ये कहती है, जैसे तुम हो, जैसे तुम रहते हो वैसे ही बन के जाओ बाहर, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बहनें अपना नहीं वो करें, उस ड्रेस में जाएं, हम जाएं लेकिन डिग्निटी से, प्रॉपरली प्रेस्ड हो, प्रॉपरली हमने पहना हुआ हो, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग इस जैसे बताए कि लव, पीस एंड हैप्पीनेस, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो इस पे हमें देना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस से बीइंग सक्सेसफुल इज व्हाट यू वांट मोस्ट, व्हाट इज सक्सेस, द अचीवमेंट ऑफ, उनसे पूछें कि भी तुम लोग क्या चाहते हो लाइफ के अंदर, प्रेस्टीज चाहते हो, पावर चाहते हो, पोजीशन चाहते हो, क्या चाहते हो, यस यू वांट टू अचीव इट, इट इज़ वेरी गुड, यू डू इट, पर उसके पीछे भी हम क्या चाहते हैं, उसके पीछे भी हम क्या चाहते हैं, उसके पीछे भी हमारी जो डिमांड होती है वो हमारी लाइफ में कंटेंटमेंट हो, पीस और हैप्पीनेस हो, दिस इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। फिर हम उनको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि व्हाट इज मेडिटेशन, नॉट द वे आई यूज्ड टू थिंक बट द वे आई वांट टू थिंक, और हमें जो हमारा टॉपिक होता है उसी से रिलेट करके मेडिटेशन करानी चाहिए। एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं ले लेना चाहिए, थोड़ा सा उसको उसी के हिसाब से टर्न कर लो। जैसे हम अपनी ड्रेस बनवाते हैं, हमने सलवार कमीज बनाई, थोड़ा सा समय के हिसाब से उसको हम बनवा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि उसमें स्मार्टनेस आ जाती है, वी आर एबल टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, वी आर एबल टू कनेक्ट टू द पीपल। सो सिमिलरली हमारा जो लिव देने का स्टाइल है लोगों को, अपनी डिलीवरी जो हम देते हैं उसमें भी हमें थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत होती है। फिर उसमें डिपेंड करता है कितना टाइम है, वी कैन टेल देम अबाउट द टू फैकल्टीज, माइंड के बारे में बता सकते हैं, इंटेलेक्ट के बारे में बता सकते हैं, इट इज़ अ थिंकिंग फैकल्टी एंड इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ, इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ प्रेफरेंस, है ना, किस पे करता है ना, टू एडवोकेट्स व्हेन दे फाइट ईच अदर देन वी चूज ना कि हमें क्या चूज करना है। और फिर उसके बाद इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट किस पे, हम उसमें से चूज करते हैं एक थॉट। और फिर जो संस्कार होते हैं दे आर लाइक अनएजुकेटेड लेबर्स, जो आपने कह दिया वो फिर वैसे ही रिपीट होते रहते हैं। हमने सोच लिया भाई हमें तो गुस्सा करना, हमारी टोन ही ऐसी हो जाती है, बात ही हम ऐसे करते हैं। फिर कोई कहता है तुम बात करते हो या तुम डांटते हो, क्या कर रहे हो तुम, है ना। इसलिए हमें थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है। तो उसमें फिर हम लोग लास्टली मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं कि मेडिटेशन का मतलब क्या है। ये स्लाइड्स हैं, इसमें तो फैकल्टीज के बारे में है, माइंड है, इंटेलेक्ट है एंड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। वो ना बिल्कुल क्लियर देना चाहिए लोगों को, ताकि उनके अंदर ना वो चीज़ फिट हो जाए। जैसे हम ड्रेस भी कौन सी पहनना पसंद करते हैं, जो हमें कंफर्टेबल और प्रॉपरली फिट हो जाए, तो हम कहते हैं इसको पहन के बड़ा मजा आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन भी जब हम किसी को बताएं, अगर हम बिल्कुल क्लियर होते हैं तो हम बता पाते, नहीं तो हम नहीं बता पाते। और जरा भी कहीं कंजेशन होता है ना, तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि कहीं आपको कोई डिस्टर्बेंस लगी,
आपको लगता है कि इफ यू प्रैक्टिस इट लाइक दिस यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन अचीव समथिंग, यू कैन डू इट. इफ यू कैन डू इट, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं. तो उसमें पहला हम उनको बताएं विड्रॉ. विड्रॉ हमने कैसे बताया? SOS बताया ना प्रिंसिपल. विड्रॉ करो योर अटेंशन फ्रॉम ऑल आउटर एक्टिविटीज एंड आफ्टर दैट अफर्म अ थॉट. आपको बार बार देना पड़ेगा. यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू हैव टू गो समवेयर. एट दैट टाइम व्हाट वी रिमाइंड अवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन, I have to go, I have my meeting, I have to, oh, I should not forget it. करते हैं कि नहीं करते हैं? We do it like this. So affirm your own identity as a point of consciousness quite different from your physical body. इसको बार बार याद दिलाओ. Point of light, like a star, like a dot I am. I am the dot energy here. तो उनको वो चीज थोड़ा फील कराओ, प्रोसेस बताओ पहले, और फिर फोकस ऑन वन ऑफ योर इनेट क्वालिटीज. लेट इट बी पीस. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज पीस, जिसके हम बने हुए हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. सो आई लाइक peace. Then concentrate on that quality, allowing the thoughts to become more powerful. क्यों करें concentrate? उसका भी उसको reason दो कि अगर आप इनको allow करेंगे तो then what will happen? You will become powerful. You will become powerful, isn't it? And then automatically a realization or experience will be there. When I am affirming again and again, I am being of peace, made up of peace. This is my ingredient. What will happen? Automatically, peace will start flowing in each and every cell of the body. And ultimately, I am going to have a feeling of peace inside. Feeling of peace inside means even if the thoughts are there, even if you are talking to someone, you are peaceful within. फिर उनको उस चीज का अनुभव कराने के लिए हम कोई ग्रॉस एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इट्स लाइक दिस, कि जैसे आप ओशन के पास जाके बैठ जाते हैं तो आप कहते हैं एकदम अंदर में क्या होता है, ओशन से ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगता है. सो सिमिलरली उनको ये क्लियर करें, यू विल नॉट सी एनीथिंग इन मेडिटेशन. कई लोग सोचते हैं मेरे को दिखाई पड़ेगा. यू विल नॉट सी एनीथिंग इन मेडिटेशन. व्हाट विल हैपन कि आप जो है मेडिटेशन में जब होंगे तो आपको एक बहुत सुंदर फीलिंग महसूस होगी. ये उनको जरूर बताएं और उनको ये बताएं कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि थॉट जनरेट्स फीलिंग. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. तो ये चीजें उनके माइंड में अच्छे से फिक्स कर दो. जब वो फिक्स हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उनको टेल देम यू प्रैक्टिस इट, डू इट, and then come to us if you find any difficulty anywhere. Okay? Any question? Benefits of Raj Yoga meditation. आजकल वैसे ये चीजें इतना काम नहीं करती क्योंकि पता है तभी लोग सीखना चाहते हैं मेडिटेशन ना. सबको पता है कि मेडिटेशन से फायदा होता है. एक ये फैशन स्टेटमेंट बन गई है मेडिटेशन, है ना. पर फिर भी अब ये डिपेंड करता है किस क्लास के लोगों से हम बात कर रहे हैं. तो हम ये स्लाइड उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ज़रूरी है या नहीं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. रिमेंबर यू आर द ओनली वन हु कैन मेक अ डिफरेंस. जी हाँ, you ask the master, the organizer. Vidatri Ben will tell you about this. She will answer. कोई और
जो ना क्लियर कर पाए हो, या आप सबके पास भी तो बहुत मटेरियल है ना, इतने अनुभवी हो, ये तो हमने अपने अनुभव से लिखा, लेकिन कोई कुछ कहना चाहता हो, कोई सजेशन हो, कोई करेक्शन हो, या यू वांट टू ऐड मोर, एनी कमेंट, कम अप, इट्स अ क्लास, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। नहीं, मजा नहीं आया? यस यस, कुछ कहना चाहते? नो, यस प्लीज, पीछे, पार्डन, क्या कह रहे हैं पीछे? सो फार सो गुड। अच्छा, शाम तक तो बहुत गुड हो जाएगा। हाँ जी, जी, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट भाषण करने में। पर हम लोगों की जो शांति है ना, वही उनको खींचती है। कई लोग होते हैं ना, बहुत हाथ मारना, बहुत आगे पीछे जाना, ये सब चीजों से डिस्ट्रैक्शन होता है। हमें जो है ना, बहुत साइलेंटली कूलली थोड़ा सा अगर एक्शन देना है तो ठीक है, वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। बाकी नहीं तो लोगों का ध्यान ज्यादा उस पर चला जाता है। हमें वाइब्रेशंस ज्यादा छोड़ने चाहिए अपनी टॉक्स में, पॉज देने चाहिए। मैंने एक सेंटेंस बोला, आपके पास वो गया। इवन कमेंट्री में भी ये ध्यान रखना होता है। यहाँ तो हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, आप सबको ये मालूम है, इसलिए। नहीं तो उस समय कम से कम मैंने भेजा, आपके पास गया, आपने उसको समझा, फिर आपने उसको किया, तब आपको अनुभव होगा। तो इसका मतलब कितना पॉज देना पड़ेगा? एक सेंटेंस के अंदर 3 सेंटेंसेस का पॉज देना चाहिए। और हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? आई एम अ पावरफुल बीइंग, बाबा यू आर कल्याणकारी, लाइक वन आफ्टर द अदर, नो पॉज इन बिटवीन। इट शुड बी लाइक दैट। जैसे हमें कोई जूस पिलाता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? एक सिप लिया, मजा आ गया, है ना? आ गया ना? ऑरेंज जूस आ गया सबके अंदर, नारियल जूस तो बहुत मिल रहा है यहाँ पे, है ऐसा। ऐसा उनको फील कराओ। फीलिंग लोग नहीं दे पाते, भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे कर लेंगे। जी सिस्टर, यू वर सेइंग समथिंग? हाँ जी, विच एक्टिविटी? हाँ, yes yes, these are the activities only, कि you write down points, don't show it to them. I have shown it to you, but you can first ask them, what are your challenges at workplace? Let them come out. Do you think any challenge at home? कोई कहेगा बहुत है, स्पाउस के साथ ही नहीं बनती, बच्चे कहना नहीं मानते, that is also a challenge that disturbs the mind, है ना? तो फिर उनको हम लोग इनकी डिटेल में नहीं जाए, बिकॉज दिस कैन बी दी डिफरेंट टॉपिक्स। पेरेंटिंग पे टॉपिक हो सकता है वो, पर हम उन चीजों में नहीं जाए, हम उनको सार की तरफ ले आए। हम उनको ये कहें कि आप ये बताइए, इन सब में आज का जो हमारा डिस्कशन है, हमारा जो टॉपिक है, इन सिचुएशंस में हो क्या रहा है अंदर में, आप बस हमें वो बताओ। I start thinking, I become negative, I start creating many questions in my mind. That is disturbing me. So put a full stop to all the questions. Thank you. Om Shanti.